अच्छा जी, ये है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? फिगर 7.1 shows the speed time graph for a car traveling on a straight horizontal road. Rumesa beta, slope of speed time graph is what? What is slope of speed time graph? Quickly बेटा जल्दी बताओ। मोहम्मद अली जिन्ना, what is slope of speed time graph? मोहम्मद अली जिन्ना, Acceleration, slope of speed time graph is acceleration. And Muhammad Ali Jinnah, what is area of speed time graph? distance. Area of speed time graph is the distance. Very good, beta. And no, the question is what they're asking. They're Um, asking describe the ये यहाँ पे रख दें, ठीक है। excuse me, Describe, sir. जी बेटा। Um, the gradient is constant positive, then it's constant negative. Yes, beta. Slope is initially up to 10 seconds. It's positive and constant. From 10 to 20 second, it is zero. And then it is negative and constant. Constant Okay? negative. And this slope of speed time graph is the acceleration. No, they are saying describe the motion of the car. तो will say ये मैं A part का आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? A first part. For first 10 seconds, for first 10 seconds, the speed is what? हाँ मोहम्मद अली जनाब बताओ। For first 10 seconds, the speed is what, beta? The speed is increasing. Rumesa beta, at what rate? Increasing at what rate? Constant. हाँ, increasing at uniform or constant rate. तो Sir, rejoin in 1 second. जी जी बेटा। For first 10 seconds, the speed is increasing at a uniform rate. This is the first thing. ठीक है, now we are moving on. After that, from 10 second to 20 second, what would you say? The speed is anyone? 0. Uh, नहीं बेटा, जीरो तो नहीं है। From 10 seconds to Is it constant speed? 20 seconds. Sir, is it constant speed? Yes, yes. The speed is constant. तो सर अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप सीधा तो फिर स्पीड 0 होती है। हाँ, तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है ना, ये स्पीड टाइम ग्राफ है। ठीक है। और फ्रॉम 20 सेकेंड टू 24 सेकेंड, ये बताओ जरा अब्दुल रहमान। फ्रॉम 20 सेकेंड खुशबख्त, फ्रॉम 20 सेकेंड टू 24 सेकेंड, स्पीड इज डिक्रीजिंग एट व्हाट रेट? हाँ, स्पीड is decreasing, speed is decreasing at uniform rate. Speed is decreasing at uniform rate. हाँ जी, कोई कंफ्यूजन इसमें बच्चों? डन, अंडरस्टूड? आगे चले जाएं। अच्छा जी, अब हम आगे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इज यूज फिगर 7.1 to calculate the distance traveled by the car during 24 seconds of its motion. Show your working. Use this graph to calculate the distance covered in whole 24 seconds. So we can say that area of this part will be A1, area of this part will be A2, and area of this part will be A3. Area of the first part will be A1, area of the second part will be A2. बच्चों आप आपस में बात ना करो प्लीज। अच्छा, area of first part will be A1, area of second part will be A2, and area of third part will be A3. No, area is the distance. Area is the distance. बच्चों एक सेकंड सिर्फ। अच्छा जी, area is the distance, and if we calculate A1, you can say that distance will be, this is second part. Distance will be A1 plus A2 plus A3. Distance will be A1 plus A2 plus A3. I think A1 is a triangle, A2 is a rectangle, and A3 is a triangle. A1 will be
1/2 into 10 into 16. A2 will be, beta, this is 10. So it will be 10 into 16 plus 10 into 60 plus it will be 1/2 into 4 into 16. So it will become 160/2 to 80. 10 into 60 600. क्यों? अच्छा अच्छा 16 है ना, 16 है, ठीक है ठीक है। अच्छा तुमने पहले किया हो। 16 160 प्लस 2 इंटू 16 32। अब ठीक है, तो 240 और 32, इट्स 272। 272 और ये मीटर्स। रुमैसा बेटा, एनी कंफ्यूजन इन दिस? बच्चों अंडरस्टूड? बच्चों आपको रिप्लाई करना चाहिए ना। हाँ जी यस। मोहम्मद अली जनाब, सर समझ आ आगे गई? समझ। हो गई समझना, अब आगे चलते हैं। तो ये हमने सारे डिस्टेंस को ऐड किए, A1 बिल्कुल, A2 तो A3। हम ओवरऑल डिस्टेंस बताएंगे ना। एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज द डिस्टेंस। यू विल कैलकुलेट A1, यू विल कैलकुलेट A2 एंड देन यू विल कैलकुलेट A3। ठीक है, तो तो सारे बीच में A2 में आपने खाली मल्टीप्लाई किए दोनों, तो अगर ट्रायंगल नहीं फॉर्म हुआ तो हम ट्रायंगल का एरिया नहीं लगाएंगे। नहीं लगाएंगे तो जहर, ये कोई पूछने वाली बात है? ट्रायंगल फॉर्म होगा तभी ट्रायंगल का एरिया लगाएंगे ना। रेक्टेंगल फॉर्म होगा तो रेक्टेंगल का एरिया लगाएंगे, जो शेप होगी वही फॉर्मूला लगाएंगे ना। अच्छा बच्चों, आपको हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्पीक। किसी बच्चे ने कुछ बोलना है तो देयर इज नो नीड टू रेज योर हैंड, यू कैन स्पीक। अच्छा बच्चों, मूविंग ऑन, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, calculate the average speed of the car during its motion. So बच्चों, what is equation for average speed? Average speed is total distance over total time. रुमैसा बेटा, average speed is total distance over total time. एक सेकेंड इब्राहिम, मैं तुम्हारा माइक ऑन करता हूँ। तो ये कंटिन्यूसली कोई रिक्वेस्ट भेजी जा रहा है अनम्यूट करने का। आप मुझे बच्चे का नाम बताए ना, मैं कर दूंगा अनम्यूट। मुझे नहीं पता चल रहा है क्योंकि खाली मुझे रिक्वेस्ट आ रही है, होस्ट इज अलाउइंग यू टू अनम्यूट, मतलब रिक्वेस्ट भेजा है नहीं नहीं, वो कंटिन्यूसली। आप कुछ ना करें, मैं खुद करूंगा। जिसने करवाना है वो मैं उसका कर दूंगा माइक ऑन, ठीक है। चले मैं अनम्यूट कर देता हूँ, लेकिन फिर आप लोग कॉन्शियस रहिएगा क्योंकि हमारी क्लास में सफ़ी और महद भी है ना, तो उनका ख्याल रखना होता है। वो डिफरेंट नेम से आ सकते हैं। यस। जी। अच्छा, अब कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग इट्स मोशन। बेटा एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस। इब्राहिम वहीद, क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। इब्राहिम, आई थिंक नाउ यू कैन स्पीक यार। टोटल टाइम। So the total distance was 272 meters. Total distance was 272 meters. And total time is, how much is the total time? 24 seconds. Total time is 24 और ये seconds। हाँ जी, कैलकुलेटर में डाल के आंसर बताओ जल्दी से। क्या आ गया? 11.33 meter per second. That is the average speed. So average speed is 11.33 meter per second. I hope you are able to solve it. अच्छा जी, नेक्स्ट वन। रुमैसा बेटा, कोई क्वेश्चन है इसमें? एंड आपका कोई क्वेश्चन बेटा? नो सर। अच्छा बच्चों, मैंने आपके माइक ऑन कर दिया, नाउ यू कैन स्पीक। 115.3 आ रहा है। क्या आ रहा है? 115.3। नहीं नहीं बेटा, 24 पे डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब a second car travels at a steady speed. It travels the same distance as the first car in the 24 second. Draw a speed time graph for this second car. To draw a speed time graph, you need speed, and you know that its speed is constant. So, equation for the speed of this car will be, it will be distance is equal to speed into time, सर or you देयर इज can अ take पर्सन इन द वेटिंग रूम। बेटा आप लोग उसकी टेंशन ना लो, आप बस क्लास पे फोकस करो। अच्छा,
speed is equal to distance over time. Speed is equal to distance over time. And what is the value of distance, beta? Value of distance, beta? 272. And total time is, अच्छा जो एवरेज स्पीड है वही आंसर आ जाएगा ना, 272 over 11.33, so it will be, sorry, 272 over time, that is 24. So when you have to move with constant speed, then you have to move with the average speed. अगर किसी ने कांस्टेंट स्पीड से उतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो दे हैव टू मेंटेन द एवरेज स्पीड, दिस इज द रूल, ठीक है? सो ग्राफ ऑफ दिस पर्सन विल बी, बेटा ग्राफ ऑफ दिस पर्सन विल बी 11.33 is the average speed. Now you should mark 11.33, 4 8 12, तो 11 कहाँ पे बेटा? 11 will be 8 to 12, we have how many divisions? 1 2 3 4 5 divisions. Every division is 0.8 है, 8.8, 9.6, 10.4, और हमें क्या मार्क करना है? 11.33 या 11.2? आई थिंक दिस डिवीजन इज 11.2, ठीक? सो इट्स ऑलमोस्ट 11.33, सो इट शुड बी हियर. दिस विल बी द ग्राफ ऑफ द कार दैट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड. अब्दुल्ला आपने यही किया था? हाँ बच्चों, आगे समझ. दिस लाइन इज फॉर the car that is moving with constant speed, the car that is moving with constant speed. रुमैसा बेटा ये क्वेश्चन मैं दोबारा समझा दूं या ठीक है? ठीक है। तो आप एक बार बता सकती हैं कि ये मैंने यहां पे लाइन क्यों बनाई है? आपने लाइन इसलिए बनाई क्योंकि ये सेकंड कार की स्पीड दिखाता है और वो कांस्टेंट स्पीड पर चल हाँ, रही तो अब हमने रूल क्या सीखा कि अगर कोई कार कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है और उसको उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो उसकी स्पीड एवरेज स्पीड के इक्वल होगी. सो जिस कार ने अब्दुलरहमान, जिस कार ने कांस्टेंट स्पीड से मूव करना है उसकी स्पीड कितना होगी? जो एवरेज स्पीड है, ठीक है? सो दिस इज अ रूल. अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट जो है सर एवरेज स्पीड वही डिस्टेंस कवर करने के लिए क्यों होती है? बेटा एवरेज स्पीड इसलिए होती है कि एवरेज स्पीड रिप्रेजेंट ही इसको करती है कि अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव किया जाए तो उस टाइम में उतना डिस्टेंस होगा. फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट चेंजिंग स्पीड के साथ मूव करता है तो जो एवरेज स्पीड होती है वो रिप्रेजेंटेशन होती है एक कांस्टेंट स्पीड की जो उतने टाइम में उतना डिस्टेंस देगी, ठीक है? एवरेज स्पीड का मतलब ही वही होता है. अच्छा, अब हम आ गए जी क्वेश्चन के बी पार्ट पे. सर जी बेटा. सर ये जो आपने लास्ट क्वेश्चन करवाया है ये हम्म, जो ये मुझे समझ नहीं आया कि कैसे ग्राफ बनाया हमने। मैं बता देता हूं, देखें. आपको जो पार्ट समझ नहीं आ रहा वो सेकंड कार के ग्राफ वाला है. जी ठीक है, मैं आपको दोबारा समझा देता हूं. आप एक काम करें, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जरा रीड करें, इनफैक्ट फोर्थ पार्ट जरा रीड करें. A second car travels at a steady speed. It travels the same distance as the first car in the 24 second of the journey. Draw अच्छा, the speed अब time. हाँ, अब आप मुझे ये बताएं कि इस कार की स्पीड कांस्टेंट है या वेरिएबल है? Constant. कांस्टेंट है. क्या इस कार की स्पीड हमें गिवन है या हमने कैलकुलेट करनी है? ऊपर कैलकुलेट गिवन है जो कैलकुलेट कर ली थी हमने। नहीं, आप खुद से कुछ ना बताएं ना. इस क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट में कोई स्पीड गिवन है या नहीं है, ये बताएं. नहीं। नहीं गिवन ना. क्या ये बताया हुआ है कि ये कार भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? जी ये बताया हुआ है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, ऊपर वाले को छोड़ो, बस इस पे फोकस करते हैं. अगर हम इस सेकंड कार की स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो मुझे बताएं सेकंड कार ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है? आपको क्या लग रहा है? सेंटेंस पढ़ के क्या समझ आई है? द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड कार इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट कार, यस और नो? यस। ठीक है. एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट कार? 272 meters. If the first car is traveling 272 meter, the second car will also travel 272 meter. Is that clear? यस। Okay. How much time is available? How much time this second car has to travel? The time is 24 seconds. So this second car has to travel 24 seconds. Is that clear? No. यस। What will be the speed of this second car? The second car is moving with constant speed. You know that speed is distance over time. Yes or no?
Yes. स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऊपर से कुछ यूज ना करो, आप कैलकुलेट कर लो। तो द सेकेंड कार हैज टू ट्रेवल सेम डिस्टेंस एज द फर्स्ट कार, दैट इज 272 मीटर, एंड द टाइम अवेलेबल इज 24 seconds। ठीक है जी। तो बेटा व्हाट इज द आंसर? 272 over 24 क्या आ जाएगा बेटा? 11.33. 11.33 meters per second. So this second car has to move with a constant speed of 11.33 meter per second. So you'll go to the graph, you will identify the division that represents 11.33 meter per second. Now focus on the y-axis. What is the value of one small division on y-axis? You can observe that we have 5 divisions in 4. Okay? So the scale of the graph is 5 small divisions are representing 4 meter per second. So one division will represent, हाँ बेटा बताओ, 4 over 5. 5. As a result, it will be 0.8. So it's each division is 0.8 and we need 11.33. This is 8.8. This is 0.8 add करेंगे 9.6. This is 10.4. This is 11.2 and we need 11.33. That will be here. So this is 11.33, and since the speed is constant, so we have to draw a horizontal line at 11.33. This is a horizontal line at 11.33 meter per second. Understood? हाँ बेटा आप जी बताएं। जी सर। ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका पहले मुझे आपको कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा। उसमें गाड़ी की ब्रेकिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो आपने समझनी होंगी। तो ये क्वेश्चन जो बी पार्ट है, बेटा एक काम करें, बी पार्ट जरा रीड करें। जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, बेटा आप रीड करें बी पार्ट। ये चले मैं रीड करता हूँ। The thinking distance. What is a thinking distance? Thinking distance is basically, for example, you're turning on a light, you're braking a car, you're doing anything. The distance covered during your reaction time is called the thinking distance. Thinking time is your reaction time. एक चीज अब यहां पे समझ लो, हमारे फिजिक्स में जब वो कहते हैं थिंकिंग टाइम, तो एक्चुअली वो रेफर करते हैं थिंकिंग टाइम से रिएक्शन टाइम को। ये लिख लो, thinking time actually refers to reaction time. Is that clear? So when you observe a hazard on the road and you are driving a car, your thinking time is basically your reaction time. And what is thinking distance? What is thinking distance? Thinking distance is the term used to represent the distance covered, the distance covered during reaction time. The distance covered during reaction time is called thinking distance. कोई confusion? So thinking time is your reaction time. Thinking distance is the distance that you cover during the reaction time. कोई confusion इसमें? ठीक है। अब क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो रुमैसा बेटा, कैन यू टेल के व्हाट इज रेफर्ड बाय थिंकिंग डिस्टेंस? थिंकिंग डिस्टेंस क्या रेफर कर रहा है बेटा? जल्दी बताएं बेटा, Sir, अभी may I बताया ना। answer? The हाँ, reaction time. नहीं रिएक्शन टाइम तो नहीं है, देखें Sir, थिंकिंग। thinking distance is distance covered through reaction time. हाँ, thinking distance is distance covered during your reaction time. For example, you are driving a car and you see something on the road and you have to apply brakes. So before applying the brake, your reaction time is there. The distance that you cover during your reaction time is called thinking distance. Acha. Thinking distance is the distance traveled by a car between the time that a hazard is seen and the time that the brakes are applied. So between observing the hazard and applying the brakes, the time that is in between is called the reaction time, and the distance covered is called thinking distance. Now, after applying the brakes, when the car will stop, the distance covered during the stopping of the car is called braking distance. The braking distance is the distance
traveled while the car slows down to rest. So after applying brakes, the distance that is covered is called the braking distance. Table 7.1 shows the thinking and braking distance for an alert driver when the car travels at different speeds. So this is a table in which they have given thinking distance and braking distance. And one thing, one second. During thinking distance or thinking time, the car will travel with constant speed. During braking, it will decelerate. During braking, it will decelerate. So इस टेबल पे ये लिख दो कि जो थिंकिंग टाइम होता है उसमें स्पीड क्या होती है बेटा? देखिए स्पीड रिड्यूस होगी जब ब्रेक अप्लाई होगी ना, तो थिंकिंग डिस्टेंस में इट्स कांस्टेंट स्पीड एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस में इट इज डीसेलरेशन, इट इज डीसेलरेशन। अब देखते हैं उसने क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो भी है। कंप्लीट टेबल 7.1। अगर हम देखें तो टेबल 7.1 में एक ही पॉइंट है जो मिसिंग है, क्या ख्याल है? अच्छा मेरा आपसे एक क्वेश्चन, अगर हम स्पीड और डिस्टेंस को यूज करते हैं तो क्या उससे टाइम मिल सकता है? कौन सा टाइम? फर्ज करें अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ड्राइवर का रिएक्शन टाइम क्या था, तो एक फोर्थ कॉलम आपने बनाना है यहां पे। हर एक रो के लिए वी विल कैलकुलेट द रिएक्शन टाइम। क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा? रिएक्शन टाइम। और पता है रिएक्शन टाइम क्या होगा? रिएक्शन टाइम होगा थिंकिंग डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो आप इसको यूं समझ लें कि मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, आप भी मेरे साथ लिख लें। थिंकिंग डिस्टेंस ऑफ अ कार, when you apply brakes, the thinking distance of a car is speed into reaction time। अब मैं थोड़ा सा यहां पे रुक जाता हूं, आप पहले इसको अंडरस्टैंड कर लें। रुमैसा बेटा जब मैं कहूंगा थिंकिंग डिस्टेंस तो उसका क्या मतलब होगा कि हम स्पीड ऑफ कार को ड्राइवर के रिएक्शन टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा अंडरस्टूड? जी। एंड बेटा आपको समझ आ गई बात? अच्छा आप मुझे ये बताएं, अगर मैं रिएक्शन टाइम को सब्जेक्ट बना दूं फिर क्या बन जाएगा? इसमें रिएक्शन टाइम को सब्जेक्ट बनाओ, देखो क्या बन रहा है। थिंकिंग डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। हाँ, तो रिएक्शन टाइम तुम लोग ये ले लिए होगे। फॉर्मूला आपने लिखवाया है कॉपी में? अच्छा कल से ना तुमने 440 से पहले पहुंचना है बस, ठीक है? और तुम्हारे लिए मैंने वर्क बुक्स कॉपी करवा दी। बेटा एक सेकंड यार, ये हमने सारी मिलके करनी है। इसकी मैं प्ले लिस्ट बना चुका हूं, ठीक है? अभी हम इसका कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, जो फ्रिक्शन वाला पार्ट है, फ्रिक्शन का हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। फ्रिक्शन का क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, फ्रिक्शन पेज नंबर बता दो अब्दुल। अच्छा बेटा कंप्लीट टेबल 7.1। अब रुमैसा बेटा रिएक्शन टाइम हम सर कैलकुलेट करते हैं, देखें रिएक्शन टाइम की इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? रिएक्शन टाइम होगा थिंकिंग डिस्टेंस, क्या होगा बेटा? थिंकिंग थिंकिंग डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्पीड। डिवाइडेड बाय स्पीड। बेटा बात सुनो, अगर मैं थिंकिंग डिस्टेंस को स्पीड पे डिवाइड करता हूं तो ड्राइवर का रिएक्शन टाइम मिलेगा। अब एक काम करें, इधर आप मुझे बताएं कि क्या होगा। 9 ओवर, दिस इज अ प्रॉब्लम, हमें स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट इज द ट्रबल, दैट इज द ट्रबल। बेटा देखो डिस्टेंस गिवन है मीटर में, स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर में। सो एग्जामिनर ने पक्का काम किया हुआ है हमें फेल करने का। रुमैसा बेटा देखें स्पीड का यूनिट क्या है? Yes. किलोमीटर पर आवर, और जो जी। डिस्टेंस का यूनिट है वो है मीटर। तो पहला स्टेप क्या होगा? किलोमीटर पर आवर कन्वर्जन को, ऑफ किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। हाँ, तो कोई बच्चा मुझे बताएगा व्हाट इज द मेथड? बच्चों सामने देखो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिवाइड या मल्टीप्लाई? Sir, multiply. मल्टीप्लाई विथ 3.6, मल्टीप्लाई विथ 3.6। याद रख लो आप, किलोमीटर पर आवर से जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, एक मिनट, डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं? आई थिंक डिवाइड करते हैं, ये सही कह रहे हैं। इन 2000 हो जाएगा ना? Sir, we have to और 36। multiply. बेटा Sir, किलो, we have बात to सुने बात multiply. सुने बात सुने बात सुने, मीटर पर सेकंड में नंबर छोटा हो जाता है बेटा। मीटर पर सेकंड में ना नंबर बिकम स्मॉलर, यू हैव टू डिवाइड, डिवाइड करते हैं। किलोमीटर पर आवर में यू हैव बिगर नंबर, मीटर पर सेकंड में यू हैव स्मॉलर नंबर, डिवाइड करते हैं बेटा। अच्छा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड क्या करते हैं? डिवाइड।
और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर डिवाइड या मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई। हाँ जी, अब सर ये बात। मल्टीप्लाई। हाँ, अब इसका मतलब है कि इन सबको हम 3.6 पे डिवाइड करते जाएंगे ताकि मीटर पर सेकंड आ जाए। वैसे उसने ये सब करने को नहीं कहा होगा, लेकिन हम कॉन्सेप्ट पूरा समझ रहे हैं ना। इसका अगर मुझे कोई आंसर बताता जाए जल्दी से। 20/3.6 क्या आ गया? सर एक मिनट। 5.5 मीटर पर सेकंड। मैं सारी स्पीड्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूं। ये बेटा आपने याद रखना है, ये किलोमीटर और आवर की कन्वर्जन है। अच्छा, 40/3.6 कितना आ गया? 11? नहीं बेटा, 11 आ गया। अच्छा, सिक्सटी 11 ओवर मीटर थ्री पर पॉइंट सेकंड। सिक्स 60/3.6, इसका मतलब है वो 5.5 के आगे भी कुछ था। अच्छा, सेकंड वन 11 पॉइंट कितना था? 11.1। थर्ड वन बताओ। 16.67। फोर्थ वन बताओ। 22। फिफ्थ वन बताओ। फिफ्थ वन 27.8। चले, अब मेरी बात सुनो, रुक जाओ ना। अब हर एक रो में अगर रिएक्शन टाइम कैलकुलेट करते हैं, रिएक्शन टाइम क्या होगा ये बताओ। आर्याना बेटा, यू शुड आस्क योर क्वेश्चन। 6 आंसर आ रहा है। अच्छा, 9/5.5 क्या आ गया आंसर? बेटा डिस्टेंस ओवर स्पीड टाइम होता है ना, ये रिएक्शन टाइम निकालना है। बताओ कितना आ गया? 1.636। सेकेंड वन में करो 18/11.1। 18/11.1 1.621। देखा, तकरीबन सेम आ रहा है। अच्छा, थर्ड वन तो हमने यहाँ पे फिल करना है ना। 36। 36 36/22.2 क्या आ गया? 1.62। देखा, ड्राइवर का रिएक्शन टाइम सेम है तकरीबन। अच्छा, अब 45/27.8 क्या आ गया? 618। तो एक चीज तो समझ आ गई कि ड्राइवर का रिएक्शन टाइम 1.62 है। आगे समझ या नहीं आ गई? ड्राइवर का रिएक्शन टाइम कितना है, 1.62 या 1.63? अब मुझे बताओ कि यहां पे हमें डिस्टेंस कैसे मिलेगा। यहां पे हमें डिस्टेंस मिलेगा स्पीड इनटू रिएक्शन टाइम। और रिएक्शन टाइम कितना यूज करेंगे बताओ जी? 1.62 ना। तो जो डिस्टेंस की मिसिंग वैल्यू है ये वाली, ये कैसे मिलेगी? ये मिलेगी, हम कहेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड किस में यूज करेंगे, किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में? स्पीड हम यूज करेंगे मीटर पर सेकंड में, जो कि है 16.67। तो 16.67 और ये मल्टीप्लाई होगा ड्राइवर का रिएक्शन टाइम जो कि है 1.62। बेटा ड्राइवर का रिएक्शन टाइम 1.62 या 1.63 आप ले सकते हैं। तो क्या आंसर आ गया? 27। So 27 meters is the missing thinking distance. From here on we will be starting tomorrow onwards. तो कल हम स्टार्ट करेंगे 4। आप लोग 4:35 तक बस आ जाया करो, ठीक है अब्दुल रहमान? 4:35 तक आप आ जाया करो। सर हमारी जी बेटा। ग्रुप कल क्लास होती है ना हमारी पहली 4 o'clock हाँ 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 होगी। हाँ, वो फिर आपकी 4 o'clock होगी ना कल। अब जी। सर फारूक, जी बेटा, सर आप काइंडली प्लीज फॉर्मूला और डेफिनेशन शीट भेज दें और मुझे इस आप एक हफ्ते रिमाइंडर दीजिएगा, 9 o'clock पे मैं भेज दूंगा, ठीक है? आज रात में भेज दूंगा किसी भी टाइम पे। ठीक है, ओके नो आई बच्चों, टेक रिमाइंड यू। एंड केयर। सेकेंडली सर, आपने हमें स्पार्क हाँ इमा। सर स्पार्क चैम्बर के नोट्स आपने नहीं लिखवाए थे, और हम ये सेव माई एग्जाम अच्छा से अच्छा अच्छा, करें या ठीक है जो ठीक आपके है, वो नोट्स थे क्या ठीक है ठीक बेहतर? है। वो स्पार्क चैम्बर के नोट्स में भेज देता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपने सेव माई एग्जाम से कर लिए उसके नोट्स डाउनलोड? जी जी, मैं सेव माई एग्जाम्स और आपके नोट्स दोनों रख रख एक साथ साथ कर रही हूँ, बट कुछ चीजें वो क्लैश टाइप कर रही है ना।
जैसे ठीक है कुछ ठीक है चीजें ठीक एक है। पे होता है, कुछ पे नहीं होता। तुम्हें कोई चीज समझ ना आए तो मुझे मैसेज करना, उसके फिर मैं छोटे से नोट्स बना के भेज दूंगा ना। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। जी जी बेटा। अल्लाह हाफिज।